خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں وائلٹ سسل آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، پولس رسول کلام خدا میں یوں فرماتے ہیں، اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے، اور فرما بردار ہو کر اپنی جہالت کے زمانہ کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے کہ پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ آئیے ناظرین، ہم بھی اسی میں پاک ہونے کی کوشش کرتے رہیں اور مسروب جارڈن کی خوبصورت آواز میں یہ گیت سنیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ گیت سنا، میں امید کرتی ہوں کہ خداوند کی یہ ستائش آپ کے لیے برکت کا باعث ہوئی ہے، اور اب وقت ہے ہماری آج کی کہانی کا، تو آئیے چلتے ہیں اور کہانی سنتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ایمان رکھتی ہوں کہ جس طرح سے ہم روز بروز خداوند کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، یہ سارا سلسلہ آپ سب کے لیے برکت کا باعث ہو رہا ہے۔ تو آئیے اسی سلسلہ میں جلالی خدا کتاب میں سے یسوع مسیح کے ایک اور معجزہ کے بارے میں سیکھیں۔
جس کا نام ہے نائن شہر کا ایک نوجوان، اور اسے بیان کیا گیا ہے مقدس لوکا کی انجیل 7ویں باب کی 11ویں تا 17ویں آیت میں۔ اور ہماری آج کی سندی آیت ہے، تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے۔ یوحنا 14واں باب اس کی 19ویں آیت۔ اور اس کہانی کا بنیادی مقصد ہے ہمیں موت سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یسوع مسیح اس موت پر اختیار رکھتا ہے۔ بچوں، آپ غور کریں کہ کچھ لوگ مکڑوں سے ڈرتے ہیں، کچھ لوگوں کو چوہے اچھے نہیں لگتے، اور کچھ بھیڑوں سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسی چیز بھی موجود ہے جس سے دنیا کے تمام لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ یہ کون سی چیز ہے بھلا؟ جی ہاں، یہ موت ہے۔ کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ کیا آپ آج ہی کے دن مرنا پسند کریں گے؟ نہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، موت کا ڈنگ گناہ اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 56ویں آیت۔ ہم گنہگار ہونے کی وجہ سے موت سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے۔ تو آئیے بچوں، کہانی پر غور کریں۔ یسوع نائن نامی ایک چھوٹے سے شہر کی طرف جا رہے تھے اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ وہ یسوع مسیح سے بہت مختلف قسم کے سوالات پوچھ رہے تھے اور یسوع ان کے جوابات دے رہے تھے۔ یقیناً خداوند یسوع مسیح ان کو ان سب کچھ کے وسیلہ سے بہت کچھ سکھا رہے تھے اور بہت زیادہ مصروف بھی تھے۔ اسی دوران یسوع اور اس کے ہمراہ وہ سب لوگ نائن شہر میں داخل ہوئے، لیکن کچھ لوگ شہر سے باہر کی طرف ایک مردے کو دفنانے کے لیے لیے جا رہے تھے، اور یہ بڑا ہی غمناک منظر تھا کیونکہ لوگ بہت رو رہے تھے، اور خاص کر اس نوجوان کی ماں بہت رو رہی تھی۔ اس کے رونے کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جوان اپنی ماں کا اکلوتا ہی بیٹا تھا اور وہ عورت بیوہ تھی۔ اب اس کا اکلوتا بیٹا بھی مر گیا تھا اور وہ اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اور بچوں، مصروف ہونے کے باوجود یسوع نے اس بیوہ کی افسردگی کو دیکھا تو یسوع کو اس پر بڑا ترس آیا۔ وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اس کے پاس چلا گیا اور کہا، مت رو۔ پھر اس نے پاس جا کر جنازے کو چھوا۔ جنازہ اٹھانے والے لوگ رک گئے۔ یسوع نے مردے سے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ۔ یسوع نے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کہا۔ اور بچوں، پھر کیا ہوا؟ اس مردہ نوجوان نے یسوع مسیح سے دوبارہ زندگی پائی، اور بڑی محبت کے ساتھ یسوع مسیح نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا۔ کیا وہاں خوشی کا سما تھا بچوں؟ نہیں، بلکہ وہاں تو لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ سب پر خوف چھا گیا کہ یہ کیسا شخص ہے جس نے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ لیکن بعد میں یسوع کے اس زبردست اور عظیم معجزے پر غور کرنے کے بعد وہ لوگ خدا کی تمجید کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی خدا نے ہم میں برپا کیا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے، اور وہ اس معجزے کی خبر دوسروں کو بھی دینے لگے۔ بچوں، غور کریں کہ یسوع نے موت کے خوف کو کیسے دور کر دیا۔ اس کو موت اور زندگی دونوں پر اختیار ہے، اور اگر ہم اس پر ایمان رکھیں تو نائن کے اس نوجوان کی طرح دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ آپ بھی خوشی منائیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ موت سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بچوں، ہر عمر کا شخص مر سکتا ہے، لیکن جو لوگ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ مر بھی جائیں تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جی ہاں، یسوع مسیح کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ آئیے آپ اور میں، ہم سب یسوع مسیح پر ایمان لائیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔
प्यारे बच्चों, हर उम्र का शख्स मर सकता है, लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो मर भी जाएं तो भी हमेशा तक ज़िंदा रहते हैं। आइए आप और मैं हम सब यीशु मसीह पर ईमान लाएं ताकि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। और बच्चों, खुदावंद यीशु मसीह के इस मोजज़ा के बयान के वसीला से आप सबों को बड़ी बरकत दें और इस लायक करें कि आप भी यीशु मसीह पर ईमान लाएं और इससे भी बड़े बड़े मोजज़ात अपनी ज़िंदगी में पाएं। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की ये कहानी देखी और सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से आपने खुदा का कलाम सीखा है और अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदा का कलाम सीखें। हमारा आज का मज़मून है मसीह की सरबुलंदी। आज इसमें हम मज़ीद सीखेंगे क़यामतुल मसीह हमें किस बात की यकीन दहानी कराती है और मसीह का आसमान पर उठाया जाना हमें किस बात की यकीन दहानी कराता है और मसीह का खुदा के दाहिने हाथ बैठना हमें किस बात का यकीन दिलाता है। आइए इस सब कुछ के बारे में सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे मसीह की सरबुलंदी और आज का हमारा सवाल है क़यामतुल मसीह हमें किस बात की याद दहानी कराती है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। पहला पत्रस 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। उसने आलमी अरवा में जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। कुलसियों 2 बाब और उसकी 15वीं आयत। उसने हुकूमतों और अख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरबला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। हमने खुदा के कलाम में से सीखा क़यामतुल मसीह हमें यकीन दिलाती है कि वो खुदा का बेटा है और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। रोमियो 4 बाब और उसकी 25वीं आयत। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए जलाया गया। पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 17वीं आयत। अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। पहला पत्रस उसका 1 बाब और उसकी 3री आयत। खुदा ने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा क़यामतुल मसीह हमें यकीन दिलाती है कि वो हमारा नजात दहिंदा है और मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। यूहन्ना 14 बाब और उसकी 19वीं आयत। क्योंकि मैं जीता हूं तुम भी जीते रहोगे। पहला कुरिन्थियों 15 बाब 22वीं आयत से 23वीं आयत। मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। यूहन्ना 11 बाब और उसकी 25वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा क़यामतुल मसीह हमें यकीन दिलाती है कि वो हमें मुर्दों में से जिंदा करेगा और मज़ीद जानेंगे मसीह का आसमान पर उठाया जाना हमें किस बात की याद दहानी कराता है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। मरकस 16 बाब और उसकी 19वीं आयत। खुदावंद यीशु उनसे कलाम करने के बाद आसमान पर उठाया गया और खुदा की दाहिनी तरफ बैठ गया। इफ्सियों 4 बाब उसकी 7वीं से 10वीं आयत। मसीह का आसमान पर एक अजीम फातिहा शख्सियत के तौर पर उठाए जाना हमें यकीन दिलाता है कि उसने वो तमाम काम अंजाम दिया जिसके लिए खुदा ने उसे भेजा था। हमने खुदा के कलाम में से सीखा चूँकि मसीह एक फातिहा शख्सियत के तौर पर आसमान पर वापस गया, उसका आसमान पर उठाया जाना हमें यकीन दिलाता है कि वो हमारा नजात दहिंदा है। और मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। यूहन्ना 14 बाब उसकी 2री व 3री आयत। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा
मसीह का आसमान पर सऊद फरमाना हमें यकीन दिलाता है कि वहाँ जगह है जहाँ हम हमेशा के लिए उसके साथ होंगे। और मज़ीद जानेंगे मसीह का खुदा के दाहिने हाथ बैठना हमें किस बात का यकीन दिलाता है, और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। इफ्सियों पहला बाब उसकी 20वीं आयत से 22वीं आयत। खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों पर बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत से बहुत बुलंद किया। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। मत्ती 28 बाब और उसकी 18वीं आयत। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हमने खुदा के कलाम में से सीखा मसीह का खुदा के दाहिने हाथ बैठना हमें यकीन दिलाता है कि वो कलीसिया की भलाई के लिए सब चीजों पर हुकूमत करता है। हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद अपने लोगों को चुन लेता है और अपने पाक रूह के वसीला से और अपने फ़ज़ल के वसीला से वो अपने उन चुने हुए लोगों को इस्तेमाल करता है, और अपने रूहुल कुदस के वसीला से वो उन्हें क़ुव्वत, ताकत और अक्ल और फ़हम भी बख्शता है कि वो दूसरे उसके लोगों के लिए बरकत का बाइस हो सके। और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए और आप सब की तमाम दुआ या दरख्वास्तों के लिए जो वक्तन फ़वक्तन हमें मौसूल होती रहती हैं। और खुदा का ही शुक्र हो कि वो हमारी इस सारी टीम को इस खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है, और वो आपकी सारी दरख्वास्तों को खुदावंद के सामने पेश करते रहते हैं, और वो खुदा हमारी सुनता और जवाब देता है। और मेरे तमाम वो भाई और बहन जो अभी तक अपनी दुआओं के जवाब पाने के मुंतज़िर हैं, मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो बिल्कुल परेशान और मायूस ना हो, बल्कि खुदावंद पर अपना भरोसा, अपना एतमाद रखते हुए अपनी सारी दरख्वास्तें उसके सामने पेश करते रहें। वो खुदा आपको वक्त पर ज़रूर मुहैया करेगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये कोशिश आपके लिए बरकत का बाइस हुई है। और अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर भेजिए, हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल, पाकिस्तान। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302789173। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से माला माल करे। आमीन।